Alright, so welcome to my academy where today in this particular session I am going to do orientation session on UPSC plus MPSC because syllabus has become quite common, and again with that I am also going to guide you with regards to sociology also. So that is the subject which I teach. So सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको ये कोई बोलेगा कि UPSC से MPSC आसान है, तो it's not like that. Because the syllabus has completely changed now. And as the syllabus has changed, I will give you the bifurcation also. I will show you the similarities as well as the differences between the basic syllabus of both the. So basically you can prepare for both right now. It's a very good opportunity for everybody to attempt UPSC as well as MPSC at the same time. Because what happened few years back or just last year, the syllabus was quite different. So basically I just give some introduction about myself. I did my engineering, I did my computer engineering from MIT College. After that I did my law, LLB, LLM from Bharati Vidyapith. I cleared NET and currently I am doing my PhD. But basically this complicated education qualification reason was that I was preparing myself for UPSC where I have given a couple of interviews and couple of mains, and I failed in my last attempt in the prelims. Then I left it. So that was my basic background. So I've been teaching in the field of UPSC since 2012. 2012 से मैं 10 साल हो गए मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मेरे academy से 3 बच्चे ही हुए हैं. It's not that a lot of people have. At least these are the ones I have taught them personally. Anil Khatsele, Vaishnavi Pankar and Vinayak Mahamuni. Vinayak Mahamuni became my 2020 attempt. He was not going to give the attempt because he was quite scared because of the lockdown, all the timetable was changed. But I told him a lot of people are not giving the attempt. So you give it. So basically it was a blessing in disguise for him because he was well prepared, but he was preparing for 5 years. It's not that ऐसा पढ़ाई चालू कर दिया और अगले साल दे दिया और वो हो गया. This requires a lot of efforts. Everybody have taken 3 or 4 attempts minimum of at least of these are my students, which I can confidently say. And they have done it. Hard work is completely theirs. My presence is there on YouTube. It's there on Facebook, Telegram channel. I have an Instagram handle with regards to my and after my name, after my academy's name, ARK Academy. And you can check out a lot of videos are there on my specifically on my YouTube channel. So if you see with respect to UPSC, there is prelims for MPSC as well as UPSC. First paper is GS and the second paper is CSAT. Now CSAT paper is a qualifying paper where you need minimum 33% marks. Okay, that is not going to be a criteria for your selection for the mains. Both the examination, if you see, this is for 100 questions for 200 marks, this is 80 questions for 200 marks. So complete is 400. Normally, यहाँ पे आपको 33% चाहिए. Okay. यहाँ पे आपका पासिंग क्राइटेरिया हो गया, लेकिन out of 200, what I am noticing is that if you are scoring around 120, you are on the safer side, belonging to any category. होता क्या है प्रॉब्लम? Normally it can vary from 100 to 120. तो इसमें क्या होता है, बच्चे 100 टारगेट करेंगे, 110 टारगेट करेंगे. You have to target here 150. तब जाके 120 मिलेगा. Because 200 out of 200 is not possible. अगर आपको perfection लाना है, this is not the exam to perfect. Because after preparing for so many years, what I realized you cannot reach perfection in this particular field because the syllabus is very versatile. It's not that something which is going to be something which is stagnant. The syllabus keeps variation because current affairs and international affairs keep changing. So it's not a very stagnant examination. उसके बाद अगर आप देखेंगे format mains, and now this is the same format for UPSC as well as MPSC. ऐसा कुछ ये नहीं कि बहुत कुछ अलग है, दोनों में same format है. There are 4 papers on GS. This is GS1, GS2, GS3 and GS4. उसके पहले आपका 2 पेपर होगा लैंग्वेज का. इंग्लिश कंपलसरी है for MPSC as well as for UPSC. And Marathi or Hindi, whichever subject you are comfortable, you can take. Because a lot of Marathi students are taking Hindi subjects. उनको मराठी का मात्रा त्यांना काही जमत नाही, कारण की इंग्लिश मीडियमचे असल्यामुळे त्यांना प्रॉब्लेम होतो. सो हियर यू कॅन टेक आयदर हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, एनी योर लोकल लैंग्वेज, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद. एंड दिस इज इंग्लिश. दीज आर क्वालिफाइड पेपर. अभी क्वालिफाइड मतलब क्या है? 300 में से आपको पास होना है. ओनली यू हैव टू क्लियर. इट्स नॉट दैट इट्स नॉट गोइंग टू डिसाइड योर मेरिट. सो इसमें पास होने के लिए बच्चे, आई हैव सीन किड्स फेलिंग इन मराठी. My friend, when I was preparing, he failed in the mains because of Marathi. And what happens is in this paper, if you fail, these papers are not set.
That is the most horrible thing, because if these are not checked, you will never come to know what is your score. If you get to know your score, like for example, I remembered when I gave the attempt, when I didn't clear the mains, my score was 806. So I got to know where I was, and the cutoff was 810. So मुझे पता चला मैं कहाँ, I can clear. So that's why after that it's about luck actually. 2-3 मार्क का इधर उधर हो जाता है, then you get qualified for the interview. तो 2 बार हो गया, 2 बार नहीं हुआ, एक बार प्रीलिम में फेल हो गए. So ये 4 पेपर जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, अब इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी मोस्टली आप खुद कर सकते हो, लेकिन अगेन the application part you have to understand, because what questions they are asking is not, it's not going to be like kindly explain the Maratha historical background or kindly explain the impact of British rule in India. ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते. They always ask application based questions. Okay, why Article 32 of the Indian Constitution was called as the soul of our Constitution by Dr. Baba Saheb Ambedkar? Why? उसके पीछे के रीजंस क्या थे, उसके पीछे का रैशनले क्या था, ये पूछते हैं. Normally what I have observed, whenever any student starts preparing, he concentrates on the facts. Dates, name of the emperors. Basically in UPSC, such kind of questions are very little, they are very less. Hardly 1 or 2 questions are asked. हम क्या करते हैं, facts रखते हैं. Now census का data आएगा, sex ratio कितना है, population कितना बढ़ गया, growth rate कितना है, महाराष्ट्र का growth rate कितना है. See, certain facts I will tell you myself. यही fact याद रखना है. What happens, people start mugging. You cannot mug up the syllabus for UPSC or MPSC. You cannot do that. So history, another important is essay. This is, see, if you want to qualify for the interview, your essay and your optional subject are the most important ones. बच्चे यहाँ पे concentrate करते हैं. You cannot master general studies. Never. अगर आप मैं हिस्ट्री में मास्टरी ला लूँगा, मैं पॉलिटी में मास्टरी ला लूँगा, आपका जो किताब का जो कंटेंट है उसमें मास्टरी आएगा. Answer writing हमेशा चेंज होगा. I will give you my example. When I was preparing at that time, it was 2012, 2013, where there was anti-corruption movement by Anna Hazare. So what we did was, General Lokpal and Lokpal, these were the 2 bills. Anna Hazare was saying that General Lokpal should be passed, and government was saying Lokpal should be passed. So what we did was, there was analysis in the newspapers, there were comparisons, provision-wise comparison was done, we marked it up. कि भाई इस पे आने ही वाला है, and it came in the question paper. Can Lokpal eliminate corruption in India? Elaborate. अभी हमने प्रोविजंस रटे, हमने सारे सब सेक्शंस क्लॉज रट के हम चले गए, डिफरेंशिएशन भी किया, बट क्वेश्चन वाज एब्सोल्युटली ओपिनियन बेस्ड. आपको क्या लगता है? कमेंट, एलाबोरेट. अभी इस पे कोई नोट्स नहीं है, तो चलिए मैं आपसे ही सवाल पूछ लेता हूँ. क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक दैट can Lokpal eliminate corruption? Because at that time Lokpal was not passed. It passed in 2013. I'm talking about 2012. So if you are the student, now this is absolutely opinion based. इसको कुछ रटने की जरूरत नहीं है. क्लास सब इसको पता है, लोग इतना तो पता होना चाहिए कि Lokpal is with respect to anti-corruption. It's a body, it's an authority which is going to catch hold of people who are in the corruption in the government. इतना तो पता होना चाहिए. तो अगर आप होते तो आप इसका आंसर कैसे लिखते हैं? थोड़ा सा give yourself a couple of minutes and then think, or otherwise you can jump on the answer. तब तक आप भी सोचिए. हाँ, कैसे लिखते हैं आप? अप्रोच कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? अप्रोच तो पॉजिटिव और होपफुल ही रहेगा सर, कि करप्शन हटाने के लिए हम लोगों के सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने उसके ऊपर इतना मेहनत लिया है वगैरह. सो पॉजिटिव स्टार्ट ही रहेगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एक्चुअल इफेक्ट की करप्शन जाएगा या नहीं जाएगा उसको टाइम लगने वाला है. तो इस बात पे बोलना कि ये पर्टिकुलर एक्ट से करप्शन जाएगा, ये मेरी ओपिनियन में ऐसा न्यूट्रल स्टैंड रहेगा कि जब तक उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहेगा तब तक करप्शन जाएगा या नहीं जाएगा ये डिसाइड नहीं किया जा सकता. बट इट विल बी अ हेल्पफुल टूल और अ वेपन फॉर द एजेंसीज टू कीप अ ट्रैक ऑन करप्शन. आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? सिमिलर कॉपी कट कॉपी पेस्ट. Now what? See, now how did I write the answer? Now here normally how comment or give your explanation to yes, I agree that Lokpal is ऐसे आंसर नहीं लिखना. Never ever write that. Don't be direct sense में कभी लिखना नहीं, indirect sense से लिखना होता है as a third person. So what I started off was by saying that
first of all, corruption is not an economic problem. Corruption is a socio-economic problem where people do corruption as a fact of privilege if they are in a position of power. एक बार आप पावर में आ गए तो आपको अपॉर्चुनिटी, पीपल आर अपॉर्चुनिस्टिक. ह्यूमंस की जो साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, इट इज टू बी करप्ट. अपॉर्चुनिस्टिक कि भाई हमें ग्रीड, बिकॉज ग्रीड को कोई अंत नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल, करप्शन इज अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, we already have a lot of institutions which are working on corruption. There is a law, Prevention of Corruption Act. We have a Central Vigilance Commission. We also have a CBI which looks after the corruption cases. If the central government permits to, there is police, there is Anti-Corruption Bureau. इसके ऊपर already कायदे हैं. Did they bring about any change? They were not effective. That's why we brought about Lokpal. But there cannot be a surety unless there is effective implementation of the law and political will. क्योंकि political will नहीं होगा जब तक ministers ही नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता. A law cannot bring about elimination of corruption in any society because there are all now this is मैं बताऊँ already there are Lokpal like institutions in Sweden, Australia, New Zealand, England. Has their corruption been eliminated? No. But yes, it does. जैसे मैंने conclude किया कि it will act as an effective tool to monitor, to bring about transparency. तो मैंने पहले मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन करप्शन का बोल दिया. क्या है करप्शन? वो भी जेनेरिक सेंस में. मैंने उसका डेफिनेशन मतलब डिक्शनरी का डेफिनेशन नहीं डाला, सिंपल पर्सपेक्टिव बताया. फिर मैंने बोला इंडिया की क्या हालत है ऑलरेडी लोकपाल के पहले, क्योंकि तब तक लोकपाल पास नहीं हुआ. वो भी ज्यादा तो मैं लिखता कि पहले इंस्टीट्यूशन तो इन्होंने मतलब ये इनफेक्टिव है. हाँ भाई लोकपाल आपने ला लिया मतलब दे आर एक प्रॉपर बॉडी सिर्फ करप्शन केसेस ही देखेगी, इसलिए हमें अलग से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. फिर मैं इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे चला गया कि बाहर के देशों में ऑलरेडी ऐसा इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने ऐसा नहीं कि वहाँ पे करप्शन एलिमिनेट हो गया, वहाँ पे भी है. एब्सोल्यूट एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल बट जस्ट मॉनिटरिंग इज पॉसिबल. अभी ये आंसर मैंने लिखा दैट हियर आई गॉट द कॉल फॉर द इंटरव्यू. मतलब इनका आंसर और मेरे आंसर में आप जब कंपैरिजन करोगे, मेरे में पेपर रीडिंग बहुत है. मैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, इंडियन पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव, मैं सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव. मैंने बोला पॉलिटिकल भी होना चाहिए. सिर्फ कायदा पास है उसका इम्प्लीमेंटेशन पॉलिटिशियंस के हाथ में. कोई ऑफिसर जाता है, ऑफिसर इज आंसरेबल टू द पॉलिटिशियन. तो मेरे आंसर में अगर आप देखोगे तो 3, 4, 5 अलग अलग पर्सपेक्टिव से मैंने ये आंसर लिख दिया. मैं मतलब ब्रॉड थिंकिंग. जीएस में वही आपको ब्रॉड थिंकिंग करना पड़ेगा. इथिक्स पेपर जो है वो एब्सोल्युटली आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करेगा. आपने कितनी भी किताबें रख ली, इथिक्स आपकी जो अभी एक क्वेश्चन आया था, अगर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था कि अगर आप ऑफिसर हैं, यू आर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड आपके पास एक औरत आती है और वो बोलती है कि मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो मुझे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे. दिस वाज द फर्स्ट सीसैट अटेम्प्ट. सीसैट का प्रीलिम्स में सीसैट का अटेम्प्ट का पहला क्वेश्चन था. दिस वाज अबाउट डिसीजन मेकिंग. 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता था. उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 0 आता था कि अगर आपका एब्सोल्युटली गलत आंसर है. सो उसमें 4 ऑप्शंस थे. उसमें पहला ऑप्शन ये था कि आप लड़की को समझाओगे कि देखो बेटा आप ये करोगे तो आपकी फैमिली की बदनामी हो जाएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप अपने घर वालों से बातचीत कीजिए, अगर फिर देखते हैं. सेकंड ऑप्शन ये था कि आप जो सास ससुर जो उसके हैं, उसका जो हस्बैंड है उसको आप बुलाओगे पुलिस स्टेशन में या उसको ऑफिस में और उनको समझाओगे कि देखिए ये गलत है, क्राइम है, अगर ऐसा हो गया तो फिर आपको हम जेल में डालेंगे. इट्स अ नॉन कॉग्निजेबल, इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. सॉरी. थर्ड पॉइंट क्या आएगा कि भाई लड़की के माता पिता और इनके सास ससुर सबको फैमिली को साथ में बिठा के आप बातचीत करोगे कि भाई समझाओगे, सभी दोनों फैमिलीज को समझाओगे. और चौथा ऑप्शन ये था कि उसको बोलोगे पुलिस स्टेशन में और एफआईआर लॉन्च करो. तो आपको क्या लगता है अक्षय, क्या थर्ड ऑप्शन दोनों फैमिलीज को बोलो, दोनों फैमिलीज को. आपका क्या लगता है? एफआईआर लॉन्च करो, एफआईआर लॉन्च करो. अगर वो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था कि आप कलेक्टर हो, वो लड़की अगर कलेक्टर के पास आ रही है मतलब पानी अब सर के ऊपर चला गया है. कलेक्टर को मिल आप पुलिस स्टेशन जाओगे एफआईआर लॉन्च करने, कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए. पुलिस वाला भी नहीं मान रहा तो उसका हेड सब
लॉ एंड ऑर्डर का हेड कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सी द सिचुएशन। आपका आंसर गलत नहीं है पर कम सही है। इनका आंसर नहीं सर, राइट। ये है एथिक्स। अब ये कौन सी किताब है? मैं बताऊं, एथिक्स में नोट्स है, बाहर बहुत सारी किताबें, हम भी एथिक्स पढ़ाते हैं। कोई बच्चे बोलते हैं सर मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ एथिक्स का मॉडल पढ़ा दीजिए। तो मेरा यही मतलब है कि इसमें मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द आपकी जो पर्सनालिटी है ना वही रिफ्लेक्ट होगी। और यूपीएससी में जो क्वेश्चन पेपर सेटिंग करने वाले होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी ही चेक कर रहे हैं। सो दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स। ऐसे और ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना मैंने बहुत सारे, मेरी एक स्टूडेंट है 3 अटेम्प्ट दे चुकी है, उसको अभी तक पता नहीं है कि ऑप्शनल कौन सा लेना। शी हैज फेल्ड इन 3 प्रीलिम्स। सिर्फ प्रीलिम की पढ़ाई चल रही है। She has not, because प्रीलिम्स में एथिक्स नहीं है, प्रीलिम्स में डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है, प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे तो सोसाइटी नहीं है। तो इसने कभी पढ़ाई नहीं। मैंने बोला प्रीलिम पास हो गया, आप प्रीलिम पास हो गए। प्रीलिम और मेंस के बीच में मैक्सिमम 80 to 90 डेज का अंतर। 80 to 90 डेज में आपने ऑप्शनल नहीं पढ़ा, आपने एथिक्स नहीं पढ़ा, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, आपने सोसाइटी नहीं पढ़ा, हो जाएगा 3 महीने। Those 3 months are only for revision and reading current affairs. That's it. जो मैंने गलती करी कि मैं प्री के बाद मेंस क्यों फेल हुआ, बिकॉज वो 3 महीने, अरे यार सेकंड पढ़ा ही नहीं पेपर, पहला पेपर पढ़ा है मैंने, सेकंड पेपर नहीं पढ़ा, अरे मैंने एथिक्स को हाथ पर एथिक्स था नहीं, जो भी होगा, अरे मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस को भी पढ़ा ही नहीं, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट को भी पढ़ा ही नहीं। तो मैं पढ़ रहा हूँ वो सब जमलिंग में, ना घर का ना घाट का, थोड़ा पार्ट मांगा सा पार्ट, रिवीजन नहीं कर पाया, कुछ नहीं, कुछ जाके मैंने बोला चलो एटलीस्ट देखते कितने पानी में। जो इंटरनेशनल रिलेशन्स टॉपिक आहे हां आया आपल्याला कसं म्हणजे करंट अफेअर्स प्लस म्हणजे जे काही बॅकग्राऊंड असेल ते दोन्हीसाठी करावं लागतं की ओन्ली करंट अफेअर्स? सी करंट अफेअर्स तुम्हाला तेव्हाच कळतील जर तुम्हाला इतिहास माहिती आहे। आज इफ यू आर आस्क्ड इवन आफ्टर रशिया अटॅकिंग यूक्रेन व्हाय आर यू टेकिंग ऑइल फ्रॉम रशिया, यू हैव टू अंडरस्टैंड in Russia and India first friendship, first strategic partnership was with Russia only. After the war, when China, we lost against China and Pakistan became closer to America, that's why we went to USSR. ये आपको नहीं पता, they are all time friends, all weather condition friends. The friend indeed is a friend indeed. वो है रशिया, इसके लिए हम रशिया से ले रहे हैं। और उसी जगह पे जब ये लोग ईरान, इराक, कुवैत पे जब ये डालते हैं सैंक्शन डालते हैं, हम लेते हैं क्या? बिकॉज बट हमारे लिए रशिया इज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर। अब ये मैं आपको क्यों समझा पाया कि मुझे हिस्ट्री पता है, इसका मतलब ये नहीं मैंने हिस्ट्री रटा है, मैंने हिस्ट्री समझा है। करंट अफेयर्स रटा है। आप करंट अफेयर्स रटना तो देखो याद रखना पड़ेगा, रटने से बेटर है कि याद रखना पड़ेगा। आपको रटना पॉसिबल नहीं। देयर आर सम थिंग्स लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री के जो फैक्ट्स हैं, इकोनॉमी के जो कांसेप्ट्स हैं, वो तो रटने पड़ेंगे। उसमें भी रटने के बाद आप एप्लीकेशन बेस्ड आपको आना चाहिए, बिकॉज एमपीएससी में भी अभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पिछले अभी जो अटेम्प्ट हुई, सभी जो स्टूडेंट्स मेरे पास आए, सर लेवल बढ़ गई है, दे आर गोइंग टू गो अप टू यूपीएससी, दे हैव गॉन, सिलेबस तो पूरा सेम टू सेम मैं दिखाता हूं। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर पैटर्न फॉर मेंस, ठीक है। ये सारे इसके मार्क्स है 300 300 250, पर ये जो इतना जो है ये दोनों सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। These papers are the ones who are going to decide your merit, okay, whether you are going to get a call in the interview or not। फिर इंटरव्यू के मार्क्स और इन सारे पेपर्स के मार्क्स मिलके आपको मेरिट और आपका कैडर डिसाइड होता है। बाकी सब क्वालिफाइंग है, इंग्लिश, मराठी, सीसैट, ये सारे क्वालिफाइंग। इवन प्रीलिम्स का भी स्कोर है वो भी काउंट नहीं होता, ठीक है। अभी ऑप्शनल, ये सारे ऑप्शनल है, आपको जो चॉइस करना है कर लो। मैंने सब ऑप्शंस लाइक लॉ है, ज्योग्राफी, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी को मैंने थोड़ा अलग कलर में दिया है क्योंकि उसकी गाइडेंस हमारे यहाँ मिलती है। मैं खुद सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाता हूँ, लेकिन स्टिल आई प्रीफर स्टूडेंट्स टू टेल आप सोशियोलॉजी लीजिए, उसके रीजंस मैं बताऊंगा आपको। तो ये सारे सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, लिटरेचर, मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, अभी मेरा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था, लॉ सब्जेक्ट था, मैंने नहीं दिया, मेरे ऑप्शनल, क्योंकि दैट टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग देयर वर 2 ऑप्शंस, सो आई टुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियोलॉजी, क्योंकि इनका सिलेबस का बहुत कम है, आसान है और मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। आई लाइक दोस सब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाई आई डिड इट। अगर मुझे आप बोलते कि
भाई सर आप लॉ कर लो, माफ कर देना भाई, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे। मेरा अगर आपको देखना है कि व्हाई इफ यू वांट टू चूज लॉ एज एन ऑप्शनल या इवन कंपेयर्ड सोशियोलॉजी, मेरे सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे है ARK एकेडमी पुणे पे, कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताना जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि नॉर्मली जो एकेडमीज होती हैं वो सिर्फ पॉजिटिव बताती है, क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं कि बच्चे उसको ज्वाइन कर लें। अब मैं जब सोशियोलॉजी का बताऊँ तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं, मैथमेटिक्स है। मेरा एक फ्रेंड था, उसने कॉमर्स लिया था बिकॉज ही वाज एमकॉम, सो उसने एकेडमी लगाई, उसने दिल्ली में गया क्योंकि उसकी कोचिंग इधर है नहीं, दिल्ली गया, कोचिंग लगाई, आफ्टर 1 मंथ ही सेट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाई तो एमकॉम है, तो बोला भाई मैं एमकॉम तक मुझे मालूम है, लेकिन ये जो यूपीएससी लेवल का चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है। इसमें लॉ में क्वेश्चन पूछेंगे कि यही जजमेंट क्यों दिया, तो ये सारे ऑप्शनल्स है। तो ये दोनों का मैंने एक साइड बाय साइड एक फॉर्मेटिंग की है, यूपीएससी का जीएस का पेपर और जीएस 1 का पेपर, इसमें सेम है, यहाँ तक डिक्टो कॉपी है, सिर्फ जो मैंने लिया भक्ति मूवमेंट एंड इट्स फिलॉसफी विद स्पेशल रेफरेंस टू सेम्स मूवमेंट इन महाराष्ट्र, सोशल रिफॉर्मर्स, खत्म, सब सेम है, A to Z कट कॉपी पेस्ट किया इन लोगों ने, मतलब इधर का उधर भी वर्ड नहीं हुआ है, सब सेम। देखिए सब GS1 है, सोसाइटी मैंने साइड बाय साइड किया, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सेम टू सेम, कुछ फर्क नहीं है। मतलब मैं आई एम जेलस ऑफ यू पीपल कि मेरे वक्त क्यों नहीं था ऐसे, बिकॉज आई नेवर अटेम्प्टेड एमपीसी, क्योंकि मैं वो अलग से नहीं पढ़ सकता था, उसकी पूरा उसका अप्रोच ही पूरा रट्टा मारने पे था, अभी पूरा एप्लीकेशन बेस्ड कर दिया लोगों। अभी GS2 देख लीजिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र पॉइंट ऑफ व्यू से है, महाराष्ट्र में 3 टायर है, राजस्थान में 2 टायर है। 3 टायर मतलब जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत। दिस इज द महाराष्ट्र में कैसा स्ट्रक्चर है, इसके लिए उसको मैंने रेट में किया। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। 73rd 74th अमेंडमेंट आपको यहाँ पे भी पढ़नी पड़ेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन यहाँ पे आपको महाराष्ट्र स्पेसिफिक, महाराष्ट्र की सिविक्स की पुस्तक वाचावं लागेल 10वीची, दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं इतना बड़ा किताब लेके बैठना पड़ेगा, इतना सा किताब लो, पतला सा, ऐसा पढ़ लोगे तो हो जाएगा, पर रटना पड़ेगा। सेम देखो कुछ कलर भी डिफरेंस नहीं, सब सेम टू सेम सिलेबस है। देखो कट कॉपी पेस्ट, GS3 इकोनॉमी सेम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेम, फूड प्रोसेसिंग, लैंड रिफॉर्म्स, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ फर्क। अभी डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस, रेजिलिएंट सोसाइटी, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में ही आता है। उन्होंने दिखाने की कोशिश की, हमने थोड़ा बहुत काम किया है, सेम है। डिजास्टर मैनेजमेंट में ये सब आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट मींस अ रेजिलिएंट सोसाइटी, रेजिलिएंट सोसाइटी अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट डिजास्टर। तो ये कुछ अलग नहीं है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक में हम यूपीएससी में भी पढ़ते ही हैं, बस यहाँ पे उन्हें अलग से मेंशन कर दिया, दैट्स इट, यही फर्क है। उसके बाद सेम एथिक्स तो कट कॉपी पेस्ट है, चांस ही नहीं। इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, एमपीएससी वालों ने कुछ भी काम नहीं किया, सेम टू सेम चैप्टराइजेशन। Why they have gone for this? Because What's the reason behind it? अच्छा ये बताता हूँ मैं। For the last 3-4-5 years, they have made the examination absolutely objective based, MCQ based for the prelims as well as mains, and the crop of officers who are coming are third class. Okay. अब लिख नहीं सकते। देखिए सर, मैडम, कैसा है कि लिखते आना चाहिए, ऑफिसर है आप, यू कैन नॉट राइट। तुम्हाला ऐसे लिखता येते, तुम्हाला आपले विचार मांडता येते, लाज वाटली पाहिजे, तुम्ही अधिकारी आहात, यू आर डेप्युटी कलेक्टर, एमपीएससी की बात कर रहा हूं, यू आर डेप्युटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड यू कैन नॉट राइट एन एफआईआर, यू कैन नॉट राइट। मराठीमध्ये हात ओढत नाही, इंग्लिश मध्ये लिहायला गेले की तत मम्म होते, हे असले अधिकारी। So they realize the pattern which they have brought about, that pattern is absolutely non-functional. The quality of officer which were coming, they are only bookworms, किताबी कीड़े। So they realize, boss, हमको अपना quality of administration in Maharashtra has to improve. कुछ नहीं आता है इन एडमिनिस्ट्रेटर्स को, बहुत रेयर होते हैं, एक आध दो जो नॉलेजेबल होते हैं। इनको बोलोगे सर आप क्या काम करते हो, खड़े रह के ऐसे माइक के आगे बोल भी नहीं पाएंगे हम काम क्या करते हैं। And that is the reason why they have called for this change, to improve the quality of officers and the recruits in
Maharashtra, because the quality of recruits and the officers which have been recruited for the last 5-6 years, that absolutely nonsense. रट्टा मार रहे हैं, MCQ तुक्के लग रहे, तुक्का लग रहा है और वो ऑफिसर हो रहे हैं। तो लिखने में आप तुक्का नहीं मार सकते, लिखने में आपको क्वालिटी आंसर भी लिखना पड़ेगा। Again, same. This is about GS4. Now that was about GS. Now I am going to talk about sociology optional. That is my optional which we are going to start for sociology. अभी sociology में भी 2 पेपर होते हैं, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, 3 hours, 3 घंटे का ये पेपर होता है, 250 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ पे अगर आप सिलेबस की अगर बात करें, this includes 25 chapters only. Only 25 chapters. अगर आप हिस्ट्री की बात करोगे, हिस्ट्री में 110 चैप्टर्स हैं और कई सारे साउथ इंडियन नाम तो मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता, राजे महाराजा के, और वो 1 है क्या 2 है 3 किंग नंबर 5 वाले क्या मुझे याद नहीं रहता। आई एम बैड एट हिस्ट्री, आई एम बैड एट ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप मुझे आई शुड बी एबल टू ड्रॉ द वर्ल्ड मैप बाय हैंड, आई एम बैड एट ड्राइंग। सो मैंने सारे, ऐसा नहीं था कि आई डिडंट थिंक अबाउट टेकिंग हिस्ट्री, बिकॉज़ व्हाट हैपेंस इज नॉर्मली व्हाट पीपल से, अगर आप हिस्ट्री ले लोगे आपका जीएस हो जाएगा, आप ज्योग्राफी ले लोगे आपका जीएस हो जाएगा। It doesn't help. I have seen people who are history net qualified doing PhD in history, they have not qualified. Pre भी पास नहीं हुए। Those who are teaching history in colleges, net qualified मतलब is a professor like me, but I am teaching law, he is teaching history. My friends, because the approach for GS is absolutely different than the approach for optional. Example देते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि काइंडली लाइक अभी अडल्ट्री के बारे में आपने सुना होगा, अडल्ट्री सेक्शन 477 ऑफ द आईपीसी। अडल्ट्री मतलब आपको पता नहीं होगा जो लॉ बैकग्राउंड के नहीं है। ये सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया सेक्शन 377, वो जरा आसान हो जाएगा कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, तो व्हाट दैट इंपैक्ट इज गोइंग टू हैव ऑन द सोसाइटी। अभी मैं बताता हूँ कैसे इंपैक्ट होता है। अभी जीएस का क्वेश्चन है, इंपैक्ट कैसे होता है मतलब। अ पर्सन हु इज फ्रॉम हिस्ट्री बैकग्राउंड, ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स देयर हैव बीन किन्नर्स, वो पूरा हिस्ट्री ले रहा है, होमोसेक्सुअलिटी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते क्योंकि उसको वो पता है। ज्योग्राफिकल आदमी क्या बोलेगा, सर दिस कम्युनिटी इज फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इट इज फाउंड इन अमेरिका, इट इज फाउंड इन इंग्लैंड, इट इज फाउंड इन ईच एंड एवरी, सो इट इज नॉर्मल। It is also found in India, but now people have come forward. Law में क्या बोलेगा, पूरा लॉ डाल देगा, कुट्टू स्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी से वो केस का नाम देने लगेगा, सेक्शन नंबर 377 वापस। वो जो चेकर है ना, पेपर चेक करने वाला, ये लॉ का बंदा है, ये हिस्ट्री का बंदा है, उधर ही आपके मार्क कट हो जाएंगे। They will cut your marks if you are an expert or very specific points in GS. That is why it is called a general studies, not specific studies. वही लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि ऑप्शनल में आंसर कैसे लिखना है और जीएस में आंसर कैसे लिखना है। इन जीएस यू हैव टू बी अ पर्सन हु हैज जनरल नॉलेज। हाँ ठीक है, आपने बोल दिया भाई सेक्शन 377 आपने लिख दिया, केसेस डाल रहे हो, केस स्टडीज किसको पता होंगे, लॉ के केस लॉस की हमको क्या पता है, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, ये 2-3 केस हमको पता है। अगर कोई तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऐसे वो 2 मिनट में समझ जाएगा पेपर चेक करने वाला कि ये लॉ ऑप्शनल का लड़का है, मार्क्स उधर ही वो डिडक्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा क्या गया कि समाज पे इंपैक्ट क्या होगा, आप क्या लिख रहे हो कि उसका लीगल बैकग्राउंड लिख रहे हो, आंसर लिखो ना कि समाज पे क्या इंपैक्ट होगा। आप लिख क्या कर रहे हो, हिस्ट्री लिख रहे हो, आप लिख क्या रहे हो, ज्योग्राफी लिख रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, लॉ लिख रहे हो, इंपैक्ट ऑन सोसाइटी को लिख नहीं रहे। लिखा तो केस लॉ लिख भी दिए, लिखा तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स डाल भी दिए, बट व्हाट इज द क्वेश्चन, स्टिक टू द क्वेश्चन। सो ये अगर आप देखेंगे सोशियोलॉजी डिसिप्लिन, यहाँ पे सोशियोलॉजी कैसे इवॉल्व हुआ, सोशियोलॉजी एज अ साइंस, कि भाई सोशियोलॉजी ये साइंस है कि नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, तो बताएगा मुझे। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो अभी ये सोशियोलॉजी साइंस है कि नहीं, क्योंकि इसके ऊपर सवाल बहुत बार उठाए गए हैं, क्योंकि आप जब सोशल बिहेवियर स्टडी करते हो तो हमेशा हम अलग अलग बिहेव करते हैं। अभी जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आई एम टीचिंग, I come every day, I teach. Sometimes I'm very energetic, I'm cracking jokes, sometimes I'm very low and dull. This is social behavior. Whenever 2 people are interacting with each other, that is social behavior. When you are interacting with yourself in front of the mirror, then it is only personal behavior. I'm talking to myself. That is psychology.
दिस इज सोशियोलॉजी। सो ये साइंस है कि नहीं, क्योंकि हर साइंस का बेस क्या है? प्रेडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। 1 + 1 = 2, E = mc², ये फिक्स है, दैट इज साइंस, बट दैट इज कॉल्ड एज प्योर साइंस। दिस इज सोशल साइंस। उसके बाद रिसर्च मेथड्स, अलग अलग थिंकर्स हैं, इसमें सिर्फ 6 ही थिंकर, ओनली 6। पॉलिटिकल साइंस में 40 थिंकर, एंथ्रोपोलॉजी में 30-25 थिंकर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 25 थिंकर्स। अराउंड एरिया बता रहा हूँ, यहाँ पे 6 है, कार्ल मार्क्स, डर्कहाइम, वेबर, पार्सल्स, मर्टन एंड रीड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अगर आपको समझ में आ गया, आप सोशियोलॉजी आराम से कर लोगे। ये आपको समझ में नहीं आया, छोड़ दो ऑप्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, मोबिलिटी। आप बोलोगे सर ये स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या है? समाज के, हमारे सोसाइटी के स्ट्रैटास है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। नाउ दिस इज स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, that is stratification based on your status. Caste means it is linked to your status. Politically powerful, politically powerless. This is stratification of your society based on politics, power. अब इसके ऊपर क्या क्या थिंकर्स हैं, मतलब हमारे जो 6 थिंकर हैं क्या बोले? ये इंटरलिंक चैप्टर्स हैं, सब कुछ एक दूसरे को इंटरलिंक है। उसके बाद वर्क एंड इकोनॉमी लाइफ, ये चैप्टर इससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये आपने बोलते ना, अगर ऑप्शनल को छोड़ दिया तो भी चलेगा। ये वाला मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कॉन्क्रीट किताब नहीं है, सब इधर उधर का पढ़ा दूंगा। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, सिटीजनशिप, सरकार कैसे चलती है, इसमें आएगा। रिलीजन एंड सोसाइटी, हमारे धर्म के बारे में है सब कुछ। झगड़े क्यों होते हैं, सिस्टम ऑफ किंगशिप मतलब फैमिली, किंगशिप मतलब आपकी फैमिली, आपके डिसेंट एसेंट, आपके इन-लॉज और आपके इन ब्लड रिलेटिव्स। ये फाइनली सोशल चेंज, कि समाज में चेंज कैसे होता है। हाउ कैन यू ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोसाइटी? समाज में अगर चेंज करना है, लॉस पास कर सकते हो, लोगों को एजुकेट कर सकते हो, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, लोगों में आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू मोबाइल्स का भी, आपके पास मोबाइल्स है, करेक्ट, उससे आप पढ़ते हो, यू रीड न्यूज़, यू सी यूट्यूब वीडियोस एंड यू गेट एजुकेटेड बाय दैट। पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो रहा है, पॉर्न वेबसाइट्स भी लोग देख रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव, पॉल्यूशन हो रहा है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, बैटरी को चार्ज करना पड़ रहा है, चार्ज करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में आप कोल जला रहे हो, क्लाइमेट चेंज। सो दिस इज द लास्ट चैप्टर। उसके बाद सोशियोलॉजी 2, इसमें थोड़ा ये बस एक छोटे-छोटे थियरीज है, एक पन्नों के इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में। उसके बाद कॉलोनियल रूल का इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया पे, हमारे स्ट्रक्चर कैसे, रूरल अर्बन स्ट्रक्चर कैसा है, कास्ट सिस्टम, ट्राइबल कम्युनिटीज, सोशल क्लासेस, किनशिप। अभी वहाँ की किनशिप सिस्टम पढ़ी, अब हमको इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। हमारे यहाँ में सिंगल मदर फैमिली कंसेप्ट नहीं है। अगर आपने रॉकेटरी मूवी देखा होगा, इसके अंदर नामी नारायण बोलते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ सन इन इंडिया विदाउट गेटिंग मैरिड। किसी को वो जोक समझ में नहीं आया, मेरे को समझ में आया। क्या बोला उसने? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ सन विदाउट गेटिंग मैरिड इन इंडिया, क्योंकि वहां पे सिंगल मदर की कंसेप्ट है, जहाँ पे विदाउट गेटिंग मैरिड यू कैन हैव अ किड। उसमें कोई स्टिग्मा नहीं है, उल्टा जो ब्लैक्स है वहाँ पे उनके मैक्सिमम फैमिली सिंगल मदर फैमिली है, बोलते हैं सिंगल पैरेंट फैमिली। मदर बोलूंगा तो जेंडर स्पेसिफिक हो जाए। वहाँ पे ऐसा भी कि औरतें बच्चा गले में मार के निकल जाती है। परसूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी देखो, विल स्मिथ का, वो डिवोर्स देके निकल जाती है, तो वहाँ पे वो विल स्मिथ अपने बच्चे को छोटे से उसका ख्याल रखता है। सिंगल पैरेंट फैमिली। हमारे यहाँ पे उसको स्टिग्मा है, विदाउट गेटिंग मैरिड इफ योर चाइल्ड, बात ही खत्म, क्या कहना, रिप्रेजेंट है ना। सो वो हो गया हमारा। फिर हमारा रिलीजन, हमारे समाज में चेंजेस क्या हुआ है। हमारे समाज में रूरल एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अभी एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या है, एनिमल हस्बेंड्री का क्या स्टेटस है, ओके। उसके अलावा जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म, चेंज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अभी पहले बुलक कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आज आप ट्रैक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हो। उसके अलावा हमारे समाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन कैसे हुआ हमारे समाज में, देखो स्लम्स, इनफॉर्मल सेक्टर, अर्बन सेटलमेंट की ग्रोथ जो है वो अनप्लान्ड है, कंजेशन, ट्रैफिक, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, बट इट इज अनप्लान्ड, इट इज एब्सोल्युटली हैपेजार्ड। स्लम्स हो रहे हैं, उससे डिजीजेस बढ़ रहे हैं, लोगों का डेथ रेशियो बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे को
इंडिया का पॉलिटिक्स, इंडिया एज अ नेशन, इंडिया नेशन है? व्हाट डू यू मीन बाय नेशन? चलो, नेशन का मतलब क्या? देश, नेशन। यही सीखेंगे सोशोलॉजी में। नेशन मतलब क्या? हम बोलते हैं नेशनलिज्म, मतलब nationalism, it's an ideology. It's an ideology where you are trustworthy, obedient towards your country and your country's ideology. Country की ideology को आप सपोर्ट करते हैं, और जो लोग सपोर्ट नहीं करते वो दूसरे देश चले जाते हैं। Arnold was from Austria. He went to US. उसको दिखा मेरा ऑस्ट्रेलिया में कोई फ्यूचर नहीं, because he did not have any kind of attachment to his country. कितने सारे लोग अपना देश छोड़ के, इंडिया में भी ऐसे लोग आते हैं अमेरिका में ग्रीन कार्ड लेके अपना उधर का सिटीजनशिप लेने, उनको इंडिया से कोई लेना देना नहीं। सो नेशन क्या होता है? रीजनलिज्म। हमारे महाराष्ट्र स्टेट में रीजनलिज्म देख लीजिए, मनसे, यूपी बिहार के लोग यहाँ आ नहीं सकते, रीजनलिज्म। सेकुलराइजेशन, हमारा देश सेकुलर है। श्रुति हाँ बोल रही है। अक्षय, सेकुलर मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलर? व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलर? All religions are to be treated equally. There is equal respect and equality among the religion, and the state does not make a law based on religion. हमारे देश में स्टेट जो पब्लिक लॉ है उसको हम रिलीजन के बेस पे नहीं करते, प्राइवेट लॉ को करते हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, वो प्राइवेट लॉ है। That is going to impact the private person, पूरे समाज को इम्पैक्ट नहीं करता। पब्लिक लॉ मतलब इंडियन पीनल कोड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसा लिखा है? हिंदू मैन हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद मुस्लिम मैन, ऐसा लिखा होता है कि नहीं? बिकॉज वी आर सेकुलर। हमारा देश सेकुलर है। हमारे देश में रिलीजन के बेस पे भेदभाव नहीं होता। आपने तो बोला सेकुलर है, किताब में लिखा हुआ है। सो देखो, अभी मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ठीक से सुनो, समझो इसको बात में। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट but not a secular society. क्या डायलॉग होगा? 10 साल से पढ़ा रहा हूँ तो अकल आ जाती है पढ़ाने में। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट बट इंडिया इज नॉट अ सेकुलर सोसाइटी। हाँ, ये डायलॉग सही लग रहा है। मतलब आपकी भावनाएं एक डायलॉग में आ रही है। आपको नहीं तो क्या होता, कैसे एक्सप्लेन करूं? लिख नहीं पाते हो आप इधर की बात एग्जांपल्स दोगे, ये दोगे, लेकिन आप एग्जैक्ट टू द पॉइंट, और यूपीएससी इज ऑल अबाउट टू द पॉइंट। आंसर जितना कम शब्दों में आप जितना अच्छी तरीके से लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वर्ड लिमिट है फॉर योर जीएस। अभी ऐसा नहीं कि पन्ने नहीं देते, वो लाइन देते हैं। उसके बाहर आपने मार्क अभी 4 लाइन दिए, चलो 5वीं लाइन तक चले गए, ठीक है। आपने और नीचे 2-3 लाइन नेगेटिव मार्किंग, जितने 4 लाइन 4 ओळी दिल्या त्याच्यात उत्तर तुम्हाला फिक्स करावं लागेल। तुम्ही परत खाली 4 ओळी लिहिल्या, तुमच्या नेगेटिव्ह मार्किंग मिळणार माइनस। If you have written those 4 lines, you might have got out of 5, you might have got 3 marks. You written another couple of 3 के एक ही मार्क मिलेगा या 1.5. So being an IAS, you have to be to the point. IAS बनना है to the point बोलो। मतलब नहीं ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, वो मीडिया में जाके बात करो, सोशल एक्टिविस्ट बनो, एनजीओ में काम करो, झंडे घुमाओ, पॉलिटिशियन बन जाओ। IAS नहीं, IPS to the point. उसके बाद बैकवर्ड क्लास, हमारे दलित मूवमेंट, हमारे समाज की सोशल मूवमेंट जो है, सत्यशोधक समाज से महात्मा ज्योतिबा फुले से जो सारे आर्य समाज, भक्ति समाज, ये सारे जो की सारी हिस्टोरिकल सारे एनवायरनमेंट मूवमेंट, चिपको मूवमेंट हमारे देश का, आपको पता होगा चिपको मूवमेंट वेयर द पीपल स्टार्टेड टू हग द ट्री। चिपको, वो झाड़ों को चिपक गए क्योंकि द गवर्नमेंट हैड गिवन द कॉन्ट्रैक्ट टू द इंडस्ट्रियलिस्ट, और इंडस्ट्रियलिस्ट ने डायरेक्ट मशीन्स लाके झाड़ों को काटना चालू कर दिया। वहां के औरतों ने बोला अगर आपने झाड़ों काटने हमको भी काट दो। सो ऑल द वुमेन ऑफ दैट विलेज वेंट एंड दे हग द ट्री। चिपको, चिपक गए झाड़ों को, और वो वहीं बैठे रहे, हिले ही नहीं। गवर्नमेंट हैड टू कैंसिल द टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने को। वेरी इंटरेस्टिंग सोशल मूवमेंट्स हैव हैपेंड इन इंडिया। पॉपुलेशन डायनामिक्स ये पूरा आपके सेंसस पे डिपेंड करेगा। ये अभी 2021 का सेंसस का डेटा आएगा, इसका पूरा का पूरा कंटेंट चेंज हो जाएगा मेरे नोट्स में भी, बिकॉज नोट्स में आपको दूंगा। और लास्ट इज अगेन चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे देश में अगर कोई चेंज, बदलाव लाना है तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो बताइए मुझे। कोई भी चेंज लाना है, have you noticed any kind of problem in our society? कभी भी हम चेंज लाना चाहते हैं तो प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम आता है? माइंडसेट।
सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोग चेंज नहीं चाहते। आपको पता है ई गवर्नेंस सुना है? ई गवर्नेंस मींस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट। अभी आपने देखा होगा कि आप ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो, आप ऑनलाइन बस टिकट निकाल सकते हो, रेलवे टिकट निकाल सकते हो, सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। पर यही काम जब आप गवर्नमेंट का करते हो, मतलब ऑनलाइन आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, ऑन कार्ड आप आधार कार्ड कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। दिस इज ई गवर्नेंस। द बिगेस्ट हर्डल फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इन इंडिया क्या है बताओ? What do you think? You can be wrong or you can be half right, you can be completely right. आप बताओ ई गवर्नेंस इन इंडिया में कि सरकार में आईटी का इस्तेमाल करने के लिए सबसे बड़ा हर्डल कौन सा है? Lack of information for same thing like driving license निकालना है तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, lack of awareness among the people to utilize the technologies. लोग क्या बोलते हैं नहीं ऑनलाइन नहीं निकलेंगे, सेंटर पे जाएंगे तब निकलेंगे। एजेंट को हायर करके भैया निकाल लेंगे। एजेंट क्या करते हैं, तुमको जहाँ पे 250 रुपए लगना था वो फिर 1000 दो रुपए पे करते हैं। हाँ करेक्ट, एब्सोल्युटली अवेयरनेस नहीं लोगों को। आपको क्या लगता है क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ई गवर्नेंस? क्यों ई गवर्नेंस को क्यों हम सक्सेसफुली अभी तक इंप्लीमेंट नहीं कर पाते? लोग चाहते नहीं है वरना, और एक्चुअली गवर्नमेंट को भी प्रॉपर्ली वेबसाइट अच्छा, मतलब गवर्नमेंट के पास उतना हाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, गवर्नमेंट के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। टेक्नोलॉजी है लेकिन वो मतलब जैसा दूसरे आईटी कंपनीज में वर्क होता वैसे है नहीं। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब people जो are not willing. पीपल आर नॉट विलिंग, मतलब पीपल मतलब हम नहीं चाहते कि Majority ऑनलाइन of public is not willing to transition into their traditional methods to something that they are scared of. स्केर्ड, लोग डरे हुए हैं। You know, like my father, he is scared of doing online things, but as per me, Same here. जो हमारा पुराना जनरेशन है, like whenever I go for online shopping and he's like no go to the store and all this. देखो और खरीदो, देखो और खरीदो, ऐसा ऑनलाइन कुछ भी आ सकता है। बिकॉज दैट जब ये स्टार्ट हुआ ई गवर्नेंस या ई कॉमर्स जब स्टार्ट हुआ तो बहुत फ्रॉड बहुत हुए थे, तो पता भी नहीं गया था, इसलिए वो डरा हुआ जनरेशन है। हम जब आए तो हमारे अभी काफी सिक्योरिटी चेक्स है, ये आप अभी काफी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। द बिगेस्ट हर्डल फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहते कि कंप्यूटर आ जाए, क्योंकि एक कंप्यूटर 4 ब्यूरोक्रेट को हटा रहा है। लोगों को हटा देता है। पहले एक फाइल ढूंढने के लिए प्यून के पीछे भागना पड़ता था, प्यून ही गायब, क्योंकि वो रिकॉर्ड आपको कंप्यूटर पे मिल जाएगा। प्यून को पैसे देने पड़ते थे, करप्शन कम हो गया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। किसको मेल किया था? ये वाला मेल आईडी है, कौन इस मेल आईडी को हैंडल करता है? आपको। क्या हुआ? सस्पेंड। पहले मैंने लेटर भेज दिया ऑफिस को, पर ऑफिस में किसने लिया? कोई लायबिलिटी नहीं। सबसे बड़ा पहले तो लोगों को सीखना नहीं है कंप्यूटर, उनको कंप्यूटर सीखना नहीं है। बिगेस्ट हर्डल इज ब्यूरोक्रेट्स देमसेल्फ। मैं भी था कॉलेज में, मैं भी 5 साल सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में पढ़ा था। सर उनका थिंकिंग क्या है कि अगर ये आ गया तो हमारा जॉब चला जाएगा। जॉब भी चला जाएगा और ऊपर का रिसर्च चला जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं जब नया ज्वाइन हुआ था सिम्बायोसिस में, मैंने जॉब छोड़ दिया। जब मेरे पास बहुत आइडियाज थे कि ये करेंगे वो करेंगे, मैं बोलता भी था। Rest of the faculty used to look at me very irritated. Senior, नया आया है क्या मतलब? होता है ना कि नया आया है। मैं excited था, मैं ये in every organization. I am working in Tata. It happens. कि आप कुछ नया आइडिया दोगे, कोई भी अगर हम सीनियर हो जाते हैं, कोई नया आता है, क्यों बताओ क्यों? कुछ होने वाला है। वो नई टेक्नोलॉजी आएगी, पुराना भी संभालना पड़ेगा, नया भी संभालना पड़ेगा। अभी हमको बोला गया सब कुछ ऑनलाइन, आप अटेंडेंस का एग्जांपल कि सब कुछ ऑनलाइन अपलोड करो ताकि बच्चों को ऑनलाइन दिख जाए, लेकिन हार्ड कॉपी भी मेंटेन करो। क्यों? मतलब हार्ड कॉपी भी हमको लेना है, वो उसका हमको ऑनलाइन भी ट्रांसफर करना है, हार्ड कॉपी भी रखनी है, सॉफ्ट कॉपी भी। अब जो ऑनलाइन अपलोड किया उसका भी जेरॉक्स निकालो, कंपेयर करो कि फैकल्टी ने काम सही से किया है कि नहीं। फैकल्टी ने कर क्या है? हमने टेक्नोलॉजी क्यों लाई? हमने टेक्नोलॉजी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए लाई। यहाँ पे तो आपने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अभी ये डॉक्यूमेंटेशन का आपने आप सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, वेबसाइट पे एक बार अपलोड हो गया डेटा, तो आप ऑनलाइन जाके देख लो। नहीं, उसकी भी जेरॉक्स निकाल के कंपनी का स्टैम्प लगा के और वो डिपार्टमेंट के हेड की साइन करके तो अलग फाइल करके भी रखो। Why are you using टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस पेपर वर्क?
और आप पेपर को पढ़ा रहे हो क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी आपने अलग से जरूरत निकाला, ठीक है सर। तो यही सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, जेंडर कॉन्फ्लिक्ट है, जेंडर कॉन्फ्लिक्ट भी है। बीच में एक बोला था, एक नियम बनाना चाहिए कि हस्बैंड ने अपने वाइफ को फायर देना चाहिए अपने सैलरी। तो फिर एक दूसरे मिनिस्टर ने बोला कितना टका, 25%, 10%, 50%, 60%, कितना सैलरी देना चाहिए। और एक औरत खुद बोली कि मुझे नहीं चाहिए, मैं आई एम डूइंग इट फॉर एज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं प्यार करती हूँ मेरे हस्बैंड से, मेरे सास ससुर, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को खिला रही हूँ, मुझे उसमें पैसे नहीं चाहिए। औरत ने खुद बोला, ये क्या हो। सो दीज आर द इलिटरेसी, आपने बोला लैक ऑफ अवेयरनेस, डिस्पैरिटीज, बहुत पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको क्या लगता है सभी को 4G मिलता है और लोगों के पास मोबाइल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट नहीं है, मोबाइल की क्या बात कर रहे हो, 4G की क्या बात कर रहे हो, ठीक है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, प्रॉब्लम्स हैं, आप चेंजेस लाना चाहते हो, ये सारे हमारे समाज में प्रॉब्लम्स। तो ये सारा इसके बारे में हमें जेनेरिक आइडिया है, ऐसा नहीं कि आप एब्सोल्युटली ब्लैंक हो इसको लेके, पर जब आपको यूपीएससी में आंसर लिखना है तो यू हैव टू राइट अ सोशियोलॉजिकल आंसर, ओके। सो दैट वाज अबाउट यूपीएससी एमपीएससी का कंपैरिजन मैंने आपको एक जगह में दिखा दिया, एंड एट द सेम टाइम सोशियोलॉजी ऑप्शन के बारे में। अभी आप लोगों के अगर कोई डाउट है, आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप लोग मुझे पूछो, व्हाट डू यू वांट, बताओ। आपको कोई भी डाउट से क्लैरिफिकेशन करवाना है। अभी सोशियोलॉजी का बैच में स्टार्ट करने वाला हूँ, सैटरडे संडे होगा सोशियोलॉजी का बैच। सैटरडे को 5 to 8, संडे को 10 to 1, 3 घंटे का क्लास होगा, उसके बीच में 15-20 मिनट का ब्रेक होगा, ओके। सैटरडे संडे दैट विल गो ऑन फॉर 6 months। इसकी हमारी फीस 35,000 है, ओके। पेमेंट कैसे करने हैं, आप 10,000 पे करके रजिस्टर करवा सकते हो, उसके बाद आप हर मंथ 5,000 दिया तो भी चलेगा। मेरा ऐसा कोई नहीं कि आपको एट वन गो या 2 बार आपको इस वक्त देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पर हाँ, विदिन 6 months आपको सारी पेमेंट करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए 10,000। मैं सोशियोलॉजी के सारे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, आपके सारे जो इंपॉर्टेंट बुक्स के मेरे पास जेरॉक्स है, उसके अंदर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरे पास, पूरा किताब पढ़ने का नहीं, जितना मैं दे रहा हूँ उतना ही करना। मुझे पता है बहुत सारे एकेडमिशियंस यही कहते हैं कि मैं जो नोट्स दूंगा उतना ही प्रोवाइडेड है, दैट हैज टू बी, ये बेस होगा, दैट हैज टू बी कॉम्प्लीमेंटेड विद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पढ़ना मतलब द हिंदू में के पेपर कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, उसका मेरा बहुत अच्छा वीडियो है, मैंने बहुत एलॉबरेट करके एक पूरा द हिंदू पेपर ही पढ़ा दिया है, कैसे पढ़ते हैं, मैं कैसे पढ़ता था, नोट्स कैसे निकालने हैं। आप नोट्स निकालिए, मेरे पास लेके आइए, सर ये पूरे हफ्ते भर का, सैटरडे को आप दिखा सकते हो या संडे को दिखा सकते हो कि सर मैंने हफ्ते भर ये लिखा है। दैट कैन बी जीएस आल्सो। मैं आई शो यू वेदर यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। क्योंकि क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, अभी से आप फैक्ट्स लिखो, मैं बता रहा हूँ, कितना भी आप अवॉइड करो, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आपको लगता है ये छूट ना जाए, ये छूट ना जाए, तो आप मुझे दिखाइए। ये सोशियोलॉजी ऑप्शन। उसके बाद जनवरी में आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉर आपके प्रीलिम का जीएस बैच में स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन वो जनवरी में। अभी फॉर क्रैकिंग यूपीएससी अगर आपका ऑप्शनल रेडी नहीं है, आई एम सॉरी, इवन इफ यू क्रैक द प्रीलिम्स यू आर गोइंग टू फेल। तो अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है। ऑप्शनल तो करना ही। सैटरडे संडे देखो, मैं आपको थोड़ा प्लान भी आइडिया दे देता हूँ। सैटरडे संडे आपका मैं जो पढ़ाता हूँ वो तभी के तभी आपको घर पे जाके आपके खुद के शॉर्ट हैंड नोट्स रेडी होने चाहिए, क्योंकि तब वो फ्रेश होता है मेरे लिए। मुझे नहीं पता सर शाम को 8 बजे मैं घर पे गया, फिर मैंने खाना खाया, मैं आलसी हो गया, आई डोंट गिव अ शिट। वरना संडे को अगर 1 बजे बाद पूरा शाम पढ़ा आपके पास, तो सैटरडे संडे का पूरा शाम भर का संडे बैठ के करो, मुझे उसी दिन होना चाहिए पढ़ाई सोशियोलॉजी का। उसके अलावा मैं बताता हूँ क्या करना है। इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, सोसाइटी, ये प्रीलिम्स में नहीं है। आप लोग, मैं बताता हूँ प्रीलिम्स की पढ़ा, प्रीलिम्स में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने वाले हो, हिस्ट्री पढ़ने वाले हो, ज्योग्राफी पढ़ने वाले हो, पॉलिटी पढ़ने वाले, इकोनॉमी पढ़ने वाले हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज करंट अफेयर्स। कोई जरूरत नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ने की। आप देख लो प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन आ ही नहीं रहे कुछ।
और एक क्वेश्चन अगर आ रहा है, उस एक क्वेश्चन के लिए अगर मुझे 3 एनसीईआरटी पढ़ने लगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। यू हैव टू स्टडी स्मार्ट। आर्ट एंड कल्चर मैंने नहीं पढ़ा था, एक क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, मेंस में तो आर्ट एंड कल्चर है ही नहीं, एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन के लिए आर यू गोइंग टू रीड द कंप्लीट इग्नू नोट्स, आर यू गोइंग टू रीड 2-3 एनसीईआरटीज? अगर मेडिवल नहीं पढ़ना, एंशिएंट नहीं पढ़ना, नहीं मैं बता रहा हूं नहीं पढ़ना। करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, कौन सा मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, इकोनॉमी पढ़ना। देयर इज अ बिग डिफरेंस। Economics is the science behind the economy. Economy is the practical application based. ये आप अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो, एथिक्स पढ़ो, आप कौन सा भी सब्जेक्ट लो, एथिक्स कर लो, सोसाइटी, आप सोसाइटी तो ये वाला कोर्स है तो आपको मेरी सोशियोलॉजी में हो जाएगा, लेकिन आंसर राइटिंग में फर्क है। यहाँ पे पेपर सेटर को पता नहीं चलना चाहिए कि आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट। अभी कैसे? There are certain words like historical materialism, deprivation. There are words like material, alienation, economic situation. अब ये सोशियोलॉजी के टर्म्स है, वो अगर आ गए ना जीएस में खत्म। वो 2 मिनट में समझ जाएगा कि ये बंदा सोशियोलॉजी है। कार्ल मार्क्स हैड मेंशन्ड, कार्ल मार्क्स, इसको हिस्ट्री वाले को पता है, कार्ल मार्क्स, ज्योग्राफी वाले को पता है, मैथ्स पेपर कौन है, उनको कोई लेना देना नहीं है उस सब्जेक्ट से। अभी सोशियोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की मैंडेटरी है क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे आप YouTube वीडियो पे सोशियोलॉजी मेरा प्लेलिस्ट है, वहां देख लीजिए, मैंने एक्सप्लेन किया है, वो सफिशिएंट है बेसिक्स क्लियर करने के लिए। यू कैन वॉच दोस टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। उसके अलावा अभी अगर आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट एनी ऑफ दिस। आईआर हो गया, गवर्नेंस हो गया। गवर्नेंस के लिए लक्ष्मीकांत की किताब अच्छी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस के नोट्स अच्छे हैं, एथिक्स के लिए भी आई थिंक विजय आईएएस के नोट्स अच्छे हैं, बाजीराम के नोट्स अच्छे हैं, येलो बुक डिसेंट है। लेकिन मैंने आपको बोला कितनी भी आपने किताबें पढ़ी, आपको खुद का पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना पड़ेगा, जिसके लिए पेपर राइटिंग मैंडेटरी है, ठीक है, और ऑप्शनल। अभी अगर आप ऑप्शनल स्टार्ट नहीं कर रहे हो, यू आर प्लानिंग टू फेल। दिस इज एक्चुअली क्वाइट लेट, दिस इज काफी लेट हो चुका है अभी, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शनल के बैचेज जो होते हैं हर साल अगस्त में लॉन्च होते हैं, बट बिकॉज ऑफ एलपीएससी अटेम्प्ट एंड बिकॉज ऑफ गणपति विसर्जन तभी एकेडमी ने पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि बच्चे ही नहीं आ रहे, बच्चे लोग एमपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने आपको आइडिया दी थी, जेनरिक आइडिया कैसे पढ़ना है। हर दिन अभी से कम 3 घंटा पढ़ाई करना जरूरी है, और संडे को भी पढ़ना पड़ेगा। अगर ऑप्शन मेरे पास लगाते हो सोशियोलॉजी के लिए, कि बात जो 2 दिन में मैंने पढ़ा है, संडे को शाम को आपको 3-4 घंटा बैठ के खुद के नोट्स बना के मुझसे रेक्टिफाई करवाने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा अगर आईएएस बनना है। You have to start studying. सितंबर, मिड सितंबर आ गया है, जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगी यूपीएससी की, और अगले 2 महीने में यूपीएससी। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आप दोनों फॉर्म भरो, क्योंकि सिलेबस सेम है, कट कॉपी पेस्ट आप दोनों को। और कोई डाउट्स है तो अभी आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो कुछ। तो सोशियोलॉजी में पेपर 1 पूरा थ्योरेटिकल है, उसमें थिंकर्स है, तो पेपर 1 आप कैसे पढ़ाने वाले हो, तो क्या स्टाइल रहेगा? पेपर देखिए, मैं पढ़ाने का मेरा बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय सोसाइटी, व्हाट डू यू मीन, अभी मैं जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करता हूँ, आगे मैं आपको बोलता हूँ, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी और सोसाइटी का फर्क क्या है? चलिए ये मैं बताऊंगा। हम हाँ, आपने सुना होगा कि ये इंस्टीट्यूशन है, कोई इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल देगा मुझे? गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। Education is an institution. College is just a means to implement that institution. Education. Family is an institution. Religion is an institution. मंदिर तो सिर्फ एक उसका एग्जीक्यूटिव आर्म है। कॉलेज क्या कर रहा है? आपको पढ़ा रहा है। क्या?
Institution क्या? Education. That's what is called an educational institution, religious institution, financial institution, bank, political institution, government, political parties, special groups. This is institution. Institution का मतलब the thing which is permanent in society. Listen to this. Permanent in society and which plays and fulfills a very important function of the society. एक समाज को एक ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट कीजिए. Treat the whole society like an animal, like an organism, amoeba, like an organism. Which organism has different organs, body parts, to perform some function. So every organ is performing some function. Liver, kidney, heart, brain, isn't it? Similarly, society is like an organism which has different institutions. Education, religion, family, financial system, political. Every institution is performing very important function. वरना वो ऑर्गेनिज्म, वरना वो सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी. हड़प्पन सिविलाइजेशन, कितने सारे सिविलाइजेशन खत्म हो गए because their institutions became non-functional. कम्युनिटी क्या होती है, सोसाइटी क्या होती है? अभी श्रुति तुम बता, सोसाइटी मतलब समाज, सोसाइटी का मतलब क्या है? क्या क्या? मैं तो सोसाइटी में नहीं रहता, मैं तो अपार्टमेंट में रहता हूँ. वो अपार्टमेंट सोसाइटी है. नहीं, मेरी वेद विहार सोसाइटी अलग है. इंडियन सोसाइटी, यहाँ पर वेद विहार सोसाइटी, दांडुकर सोसाइटी, मयूर कॉलोनी सोसाइटी. मैं अगर बोलूँ प्रिजन इज अ सोसाइटी, रेड लाइट एरिया इज अ सोसाइटी. सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो लोग चाहिए. दिस इज अ सोसाइटी, हस्बैंड वाइफ, इट्स अ सोसाइटी. आप बोलोगे ये साइंटिफिक एनालिसिस, दिस इज साइंस. कॉमन सेंस और साइंस में फर्क होता है. अभी आपने व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ पावर? वैट. वैट, करेक्ट? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी? साइंटिफिकली पढ़ना है ना. व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी? पीपल. वो तो साइकोलॉजी में भी है, एंथ्रोपोलॉजी में भी है, लॉ में भी है, सोशियोलॉजी में क्या है? हर सोशल साइंस में पीपल है. फिर सोशियोलॉजी क्या अलग क्यों है? फैमिली, एक फैमिली ग्रुप बनती है, ग्रुप कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी सोसाइटी. बेसिक यूनिट फैमिली. That is why foreign societies are under danger of getting eliminated completely because people are not getting married. If they are getting married, they don't want kids. Because family के वजह से society आगे बढ़ रही है, reproduction की वजह से. That is why it is the basic unit. Because family's basic function is reproduction. समाज को आगे बढ़ाना. जरूरी नहीं मैरिज हो. मैरिज वो अलग इंस्टीट्यूशन है. मैरिज इंस्टीट्यूशन इज फॉर बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन. मर्दों के लिए नहीं है वो. समझ रहे हो बच्चे? मैरिज इज फॉर वुमन सेफ्टी, हमारी सेफ्टी के लिए नहीं है. इसलिए आई एम वेरी क्वाइट क्या आई फील पिटी फॉर दोज वुमन हु आर इन लिविंग रिलेशनशिप्स. बिकॉज़ आफ्टर 40 nobody, after 35 nobody is going to ask them. कोई नया लड़का 20-25 साल का लड़का लिविंग रिलेशनशिप में 35-40 साल के बूढ़े के साथ नहीं आने वाला. That's why marriage institution was formed for the welfare of women, for their safety. So that is why family is the basic. ऐसे में पढ़ाता हूँ, where you have to interact with me, where I ask you questions, where you have to discuss, and the point of the fact is that you have some knowledge. अभी ये मैंने बहुत बेसिक पूछ लिया, लेकिन if I ask you about tribal problems, tribal society, तो आप कुछ ना कुछ तो बोलोगे सर एजुकेशन नहीं है, पॉवर्टी है, उनको डर लगता है डॉक्टर से, वो मेडिकल साइंस मतलब मेडिसिन से डरते हैं, वो लोग बात उनको लैंग्वेज बैरियर है. आपको पता है जैसे आप पढ़ने लोगों के तो ये बाहर आने लगेगा. हाँ अभी जब मैं बोल रहा हूँ आंसर बोल रहा हूँ, क्या ये आप पेपर में लिख सकते? बस उसको एक फ्लो चाहिए, उसको एक फ्लो चार्ट की तरह डायरेक्शन चाहिए. वरना बीच में याद आ गया मैंने लिख दिया, बीच में मुझे याद आ गया चलो लिख दिया, तो वो आंसर आपका कोई फ्लो नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा. आंसर राइटिंग इज आल्सो स्किल. सोशियोलॉजी आसान सब्जेक्ट नहीं है. सोशियोलॉजी में अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं आती पेपर छोड़ना होगा. इसे देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन में आंसर राइटिंग नहीं आती छोड़ना ही पड़ता है.
सोशियोलॉजी के थिंकर्स अगर आपको समझ में आ गए तो आपका पूरा का पूरा सोशियोलॉजी आराम से हो जाएगा। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, बहुत बेसिक। सोसाइटी क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, सोशल ग्रुप क्या होता है, सोशल बिहेवियर क्या होता है, इससे मैं स्टार्टिंग करके फिर देयर आई गो चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 में पूरा फ्लो में जाता हूँ। फिर पूरा पेपर 1 हो गया, फिर पेपर 2 पे जाता हूँ, क्योंकि वो सब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स द वे आई गो अकॉर्डिंग टू यूनिट्स। इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट the difference between me teaching sociology and a person who is PhD in sociology, and I have my UPSC orientation. I teach application based. These people will teach you theoretical based. That is the biggest difference which you see. Otherwise, there might be people. I don't have any sociology background. I am engineer. I am lawyer. I am a professor of law. I am not a sociologist, but I can teach sociology. And these two students, Anil Khadse and Vaishnavi Bankar, are my students of sociology also. Vinayak Mahamuni was for GS. He was there for GS. He was not there for maths. His optional is different. And this is actually a popular optional. I always scored around 300 because that time our paper was out of 600. मतलब 600 मार्क का होता था टोटल. तो मुझे हमेशा 300 350 में मिलते थे. 300 में से I was always around 160 150 के आसपास में रहता था. So it's a scoring subject. It's a small subject. Only 25 chapters are there. And at the same time, you realize कि अगर 90 days आपकी पूरे sociology complete हो गई तो you can revise sociology 3 times, 1 chapter per day. I'm talking about revision. तो मैं 3 बार रिवाइज करता था sociology. एक महीने में एक बार ही मेरा टारगेट होता था. 3 times I have to revise. You can do it with history, political science, geography. Take track. वो सब्जेक्ट ऑप्शन खत्म करने के लिए 1-1.5 साल लग जाता है. इतने बड़े ऑप्शंस. I'm not against that. And I love it. I don't, but I'm just talking about the positives as well as the negatives. अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं आ रही सोशियोलॉजी में, मत करो सोशियोलॉजी. सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा, डोंट डू सोशियोलॉजी. बट हाँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी. सो बट यस, फॉर जीएस व्हाट आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ऑप्शन तो करने वाला हूँ स्टार्ट अगले सैटरडे से, बट एथिक्स या सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, ये पढ़ना स्टार्ट करें. क्योंकि अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी स्टार्ट करोगे, जो 99.99% बच्चे स्टार्ट करते हैं, एकेडमी वाले भी हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं, ये कभी फी होता ही नहीं ना कभी. और जब आपकी फीस तब तक पूरी भर दी जाती है नॉर्मल एकेडमीज में, जब ये किस टॉपिक्स पे आते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, एंड दे डोंट केयर. इसलिए ये अभी से पढ़ना जरूरी है, जो प्रीलिम्स में नहीं है, क्योंकि जो प्रीलिम्स में आप लोग वैसे भी जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करने वाले ही, जनवरी फरवरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, आजादी के बाद क्या हुआ, वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, सिर्फ हिस्ट्री मतलब हमारी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है. वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब आफ्टर 1947. आपको आपके लिए ये भी पता होना चाहिए. दिन चल रहा. Any other doubts? And yes, मेरे जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से हर सब्जेक्ट के मेरे पास वीडियो नोट्स है, वीडियो नोट्स एंड नोट्स जो मैंने पढ़ाए हैं. आपको अगर सिर्फ सर मुझे सिर्फ इथिक्स के वीडियो रिकॉर्डिंग्स और मुझे उसके नोट्स चाहिए तो उसका एक अलग पैकेज आएगा. ये वाला पेपर फ्री का अलग पैकेज आएगा कि आपने बोला नहीं सर मुझे सिर्फ इकोनॉमी चाहिए, तो मेरे पास इन सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स विद नोट्स. वो आपको सब्जेक्ट वाइज अगर आप आएंगे तो मैं बता दूंगा कि इसके 5000 है, इसके 3000 है. अगर आपको वो उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए चाहिए, क्योंकि बच्चे बोलते सर मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी कर लूंगा, आप सोसाइटी भेज दो, तो सिर्फ सोसाइटी के वीडियो रिकॉर्डिंग्स का जो भी चार्जेस होगा विद सॉफ्ट नोट्स, सॉरी विद नोट्स, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. ये फैसिलिटी भी है मेरे पास, ऑल वीडियो लेक्चर्स आते हैं. और आपने मेरा वीडियो क्वालिटी तो देखा ही होगा, इट इज देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल. उसके ऊपर मैंने अलग अलग डाल रखे हैं ताकि लोगों को पता चले वीडियो क्वालिटी कैसे, आवाज कैसे है. वरना वीडियो आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, खराब दिख रहा है, ऐसा नहीं है. ओके, एनीथिंग एल्स? डन. सो नेक्स्ट सैटरडे 5 o'clock, 5 to 8 होगा, बीच में 15-20 मिनट का गैप होगा फॉर सोशियोलॉजी, सैटरडे संडे. ऑप्शनल प्रोसीजर करना है. और अभी से फ्रॉम टुमारो start reading the newspapers, taking out the notes, and start one of the subjects. You can start with ethics, you can start with anything. Economy, जो भी आपको करना, आपको हिस्ट्री करना है तो करो.
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हिस्ट्री करना है तो पोस्ट इंडिपेंडेंस करो, वर्ल्ड हिस्ट्री करो, ये पहले करो, क्योंकि ये लोग आप प्रीलिम आ गए तो ये हाथ भी नहीं लगाओगे। सो इफ यू क्लियर द प्रीलिम्स इन द नेक्स्ट 3 months यू आर जस्ट रिवाइजिंग, शॉर्ट हैंड नोट्स निकालो, शॉर्ट हैंड नोट्स निकालने आता है ना, वरना लिख रहे हो। मैंने देखे सर मैंने नोट्स बनाया, अरे भाई तूने तो मेरे नोट्स तो डायरेक्ट वैसे के वैसे तो सिर्फ हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर दिए। दीस आर नॉट शॉर्ट हैंड नोट्स। इसलिए मैंने बोला नोट्स निकालो, मुझे दिखाओ, सैटरडे संडे जब भी अगर सोशियोलॉजी बैच लगा देखें आई कैन चेक कि आप जीएस में भी सही तरीके से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऑप्शन पढ़ा दूंगा, आई वोंट गाइड इन जीएस।